here we have entered two numbers into the computer. Input is 41 and 12. What will be the process? We have to add these two numbers 41 and 12. Here we have added 41 plus 12. Okay, this is the process. And here is the output. 41 plus 12 equal to 53. This is called IPO cycle. Input, process, output. Okay, this is called IPO cycle. Now computer have many components. Components of computer. Computer have components of computer. Computer have three components: input unit, processing unit, output. What is input unit? Devices through which we enter the data into the computer is called input unit. Input unit or input device. You can also tell it input device. Input unit has many there are many examples like keyboard, mouse. Others example also barcode reader, optical mark reader. Input. There are many devices through which we enter the data into the computer. These devices called input unit. Second is processing unit. What is processing unit? CPU is called processing unit, central processing unit. Whole name is central processing unit. Its start name is CPU. CPU is called central processing unit. It processes the data. Processing unit processes the data which we have given to computer. And what is output unit? Devices to which we take the result is called output unit. For example, printer, monitor. These are output unit. Now input unit is keyboard and mouse. These are the input unit. What is keyboard? Keyboard. Through keyboard we enter the data into the computer. Keyboard has many keys. It has about 104 to 106. It has many type of keys like character keys, number keys, function keys and special keys. कैरेक्टर कीज में आपका अल्फाबेट आते हैं. ये जो है सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते हैं. कीबोर्ड को हम क्वेर्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं. इट्स आल्सो कॉल्ड क्वेर्टी कीबोर्ड. Keyboard, there have four types of keys: alphabet key, the letter key, alphabet keys A to Z, number keys 0 to 9, function keys F1 to F12 and special keys. Especially there are many type keys like arrow key. In arrow key there are four types of keys. Four keys in arrow. It is top arrow key. It is called top arrow. It is down. This is like this. It is right. And this is left. So there are four arrow keys. Top arrow keys, down arrow key, left arrow key and right arrow. These keys used to move the cursor on the screen. ये जो की होती है इनकी सहायता से जो है स्क्रीन पे कर्सर को हम जो है टॉप में, डाउन में, लेफ्ट में और राइट में हम मूव कर सकते हैं. इसके बाद आपका बहुत सारी कीज होती है. इंटर की,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू लाइन की। इसको जो है आप न्यू लाइन की भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इंटर की के द्वारा हम जो है कर्सर को जो है नए लाइन में हम ले जाते हैं, इसलिए इसको न्यू लाइन हम की बोलते हैं। या किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्पेस बार की यूज फॉर गिविंग द स्पेस। इसके अलावा और से बहुत जो है स्पेशल की कीबोर्ड में होती है। कीबोर्ड की सहायता से विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। इसके बाद जो है माउस आता है। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एंटरिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर। In mouse has 3 buttons. Mouse has 3 buttons. Mouse has 3 buttons: left, center, and right. We use left button frequently. सबसे ज्यादा जो यूज होता है जिस बटन का वो लेफ्ट बटन का है। किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए जो है हम लेफ्ट जो है बटन का हम यूज करते हैं। सेंटर बटन को यूज हम जो है स्क्रॉल करके जो है डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए करते हैं। राइट बटन का उपयोग भी हम किसी भी आइटम को हम ओपन करने के लिए कर सकते हैं, या उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है उसकी प्रॉपर्टीज हम देखने के लिए जो है राइट बटन का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट बटन इज यूज फ्रिक्वेंटली एंड राइट बटन बहुत ही कम यूज होता है। इसके बाद आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है इसका शॉर्ट नेम जो है सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू हैज 3 पार्ट्स। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट नेम इज सीयू। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। फर्स्ट when we enter the data into the computer it store in memory unit। वो कहाँ पे जाता है जो है मेमोरी यूनिट जो है, इसको स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। ये जो है डाटा को स्टोर करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले जब हम डाटा को कंप्यूटर में इंटर करते हैं, टाइप द डाटा, वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, इज गोज टू मेमोरी यूनिट, जहाँ पे डाटा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। स्टोरेज यूनिट भी इसको बोलते हैं। और वहां से जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक मींस क्या करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारा काम जो है अरिथमेटिक या लॉजिकल जो है ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट से एक ही डाटा को लेता है और जो भी ऑपरेशन रहता है प्लस करना या माइनस करना, वो काम जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। ये दोनों काम, ये जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये डाटा को स्टोर करता है और 1 बाय 1 करके काम करता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इन दोनों का वर्क हमने आपको बताया। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये जो ऑपरेशन होता है वहां से मेमोरी यूनिट से डाटा लेना और यहाँ पे उसको परफॉर्म करना, ये जो है इसको मैनेज करने का काम करता है। इट्स एक्ट लाइक ए मैनेजर। कंट्रोल यूनिट एक्ट्स लाइक ए मैनेजर, ये मैनेज करने का काम करता है। वेदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वर्क्स लाइक एन एम्प्लॉय। ये जो है एक एम्प्लॉय काम करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो है एक मैनेजर की तरह काम करता है, जबकि एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। तो एक तीनों का वर्क है। मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करता है, वहां से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लेता है और अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डाटा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब इनपुट यूनिट के और भी एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे। इसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट के बाद जो होता है आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू विच वी टेक द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जिसमें क्या आता है आपका एग्जाम्पल, इसमें जैसे प्रिंटर होता है, इसमें मॉनिटर होता है। प्रिंटर क्या करता है,
प्रिंटर जो है पेपर को प्रिंट करने के लिए होता है। मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये जो है आपको जो है सॉफ्ट आउटपुट देता है। दो तरह का आउटपुट जो है, आउटपुट इज टू टाइप्स ऑफ आर देयर, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो प्रिंटर से जो हम जो है प्रिंट आउट लेते हैं दैट इज हार्ड कॉपी, और मॉनिटर से जो हम मॉनिटर पे जो हम रिजल्ट देखते हैं दैट इज सॉफ्ट कॉपी। तो आउटपुट जो होता है वो जो है टू टाइप्स का होता है। इनपुट यूनिट में का एग्जांपल और भी है। इनपुट यूनिट में और बहुत सारे जो है डिवाइसेज आते हैं, जैसे बार कोड रीडर होता है। ये क्या करता है, बार कोड रीडर, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती है, और जिसकी सहायता से क्या करता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट का जो है आपको डिटेल बताता है। उसके जो है स्ट्रिप की विड्थ और जो है उसके डिस्टेंस के आधार पे जो है मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट का जो है आपको जो है डिटेल बताता है। उसके बाद आपका जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जो भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसका जो है आंसर चेक करने के लिए OMR शीट का जो है OMR शीट का यूज किया जाता है। तो जो पेंसिल से जो हम मार्किंग करते हैं उसको क्या करता है, लाइटर दिखाता है, बाकी और चीजों को क्या करता है, वो डार्कर दिखाता है। इसके आधार पे हम क्या करते हैं, जो आपको जो आंसर शीट होती है इस जो है डिवाइस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, ये जो है टेक्स्ट को कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, पहले जो टेक्स्ट होता है उसका जो है इमेज बनाता है, इमेज बनाने के बाद फिर क्या करता है, उसको जो है कैरेक्टर में कन्वर्ट करके जो है आपको जो सिस्टम में डालता है। इसके बाद जो है आपका जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर है। मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर क्या होता है, ठीक है, ये एक डिवाइस ऐसा होता है जिसके द्वारा जो है हम चेक जो होते हैं, ठीक है, चेक नंबर जो है पढ़ने के लिए, जो है चेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। यूज टू रीड स्पेशल कैरेक्टर लाइक चेक्स होता है, चेक नंबर जो होता है। इसके बाद जो है आपका कार्ड रीडर होता है। कार्ड रीडर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो कार्ड रीडर की सहायता से जो है कार्ड के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसको पढ़ने के लिए जो है कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अब आउटपुट यूनिट में जो है, आउटपुट यूनिट में हमने आपको जो है बताया प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। प्रिंटर इज टू टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिससे क्या होता है, प्रिंटर हेड जो है पेपर से टच होता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है, इसमें जो होता है जो है आपका पेपर से टच नहीं होता है, तो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका लाइन प्रिंटर आता है। लाइन प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर जो होता है कैरेक्टर को लाइन बाय लाइन जो है प्रिंट करता है, एक लाइन जो है करके ये जो है आपको कैरेक्टर को प्रिंट करता है। हियर इज योर लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है एक कैरेक्टर जो है लाइन को प्रिंट करता है। इसकी जो स्पीड होती है जो 300 से जो है 3000 जो है पर मिनट जो है ये क्या करता है, 300 से 3000 पर मिनट ये जो है प्रिंट कर सकता है। इसके बाद जो होता है कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर जो है एक एक कैरेक्टर प्रिंट करने का काम करता है। इसकी जो स्पीड होती है जो 30 से 600 कैरेक्टर तक जो है 30 से 600 पर सेकेंड जो है कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। इसके बाद आपका जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ग्राफिक्स और जो है टेक्स्ट दोनों का प्रिंट कर सकता है। ये जो है डॉट के रूप में जो है क्या करता है, जो है लेटर बनाता है और उसके द्वारा जो है ये पेपर को प्रिंट करने का कार्य करता है। इसके बाद जो है दिस इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर गिवन हियर, देयर आर प्रिंट हेड एंड देयर आर रिबन। एक रिबन होता है और प्रिंट होता है, उसी की सहायता से इसमें जो है कैरेक्टर के रूप में जो है आपके पेपर को प्रिंट करता है। इसके बाद जो होता है डेजीविल प्रिंटर होता है। इसकी जो है एक ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है, इसकी स्पीड जो क्या होती है बहुत ही स्लो होती है और एक कॉपी जो है
कॉस्टली होता है। आपका डिजिटल प्रिंटर यहाँ पे जो फिगर में दिखाई दिया है, इसका जो फिगर जो है इस तरह से जो है ये डिजिटल प्रिंटर है। इसकी जो है ये डिजिटल प्रिंटर है। नेक्स्ट प्रिंटर है आपका ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जो होता है डिजिटल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से जो है काफी जो है फास्ट होता है और है एक लाइन या सिंगल ऑपरेशन में क्या कर सकता है ड्रम प्रिंटर आपका प्रिंट कर सकता है। ड्रम प्रिंटर, दिस इज द ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर आर गिवन हियर। इसके बाद आता है आपको जो है नॉन इंकजेट प्रिंटर। नॉन इंकजेट प्रिंटर इज टू टाइप्स, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है जो है इंकजेट प्रिंटर का बहुत ज्यादा प्रयोग जो है, बहुत ज्यादा यूज इसका किया जाता है। इसका घर पे भी प्रयोग होता है और ये ग्राफिक्स और टेक्स्ट है दोनों प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जो होता है लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है जो है बहुत ही गुड होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है पेपर प्रिंट करता है। इसकी स्पीड जो होती है जो है बहुत ही फास्ट होती है। सो टुडे मोस्टली वी यूज लेजर प्रिंटर। ओके, थैंक्स।